है। सिमैया स्टार्ट करो। सिमैया मैम मैं ही प्रेजेंट करूँ या आप बोलेंगी मैम? नहीं, तुम करो, तुम बोलो, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा हम समझाएंगे। असाइनमेंट तुम्हारा है ओके मैम। ना? यस मैम। मैं मेरा ऑडियो क्लियर है ना मैम? एकदम क्लियर है। ओके मैम। So, good morning, everyone. And this is my topic, a cheese starter, in which I have to present classification, desirable properties, artisanal and unjug cheese cultures, a primary and secondary flora of cheese. सिमैया Yes, ma'am. What is cheese starter? The term starter culture is used to describe bacteria, especially grow to start the transformation of milk into cheese. A cheese starter may be defined as a milk culture containing selected lactic acid bacteria, usually Lactococcus lactis, subs lactis, Lactococcus lactis, subs ceremoris, Lactococcus lactis, subs diacetyl lactis, which convert about 1% of lactose in milk almost entirely to lactic acid, along with very little amount of byproduct such as acetic acid and carbon dioxide. Starter culture are intentionally added to cheese milk to initiate and accomplish the desired fermentation. It ensures consistent souring at a controllable rate, give desirable clean lactic flavor, and helps to suppress any tendency for taint producing microorganism to grow in milk. इसमें किसी को कुछ समझना है? ये सिंपल बस बता रहा है कि चीज स्टार्टर क्या है, किसी भी चीज का स्टार्टर क्या है, उसमें फर्मेंटेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाए, तो चीज में भी जो फर्मेंटेशन लाएगा उसको हम लोग चीज स्टार्टर बोलेंगे। और चीज स्टार्टर में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप के, मेनली लैक्टोकोकस लैक्टेस, सब स्पीशीज लैक्टेस, क्रीमोरेस, डायस्टालिटिकस, ठीक है, वो जो कि मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। एंड कुछ जो है वो एक मतलब सम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है। मैम चीज मिल्क क्या होता है? क्या चीज मिल्क हाँ, इसमें चीज मिल्क जैसा कुछ है। चीज मिल्क मतलब starter culture are intentionally added to cheese milk to initiate and accomplish the desired fermentation. अरे भगवान, जिससे मिल्क जिससे चीज बना Normal रहे milk. हो, चीज मिल्क। हाँ, नेक्स्ट बताओ क्लासिफिकेशन इसका। सिमैया शुरू करो। Yes, ma'am. Like broadly, they are characterized into two types: mesophilic and thermophilic. Mesophilic, which are used to make most cheese, they perform best at temperature between 20 to 30 centigrade. Thermophilic, which are used mainly to make continental cheese, that are supply and sweeter सप्पल in एंड flavor स्वेटर। and supple and sweeter in flavor and perform best at hotter temperature between 45 to 50 centigrade. Both mesophilic and thermophilic culture can be further subdivided into mixed, that is undefined culture, in which the number of strain is unknown, and defined culture, in which the number of strains is known. But nowadays, most starters are produced in laboratories on a large scale by multinational companies before being packed in a form which is easy to use. जैसे इसमें कह रहा है कि दो तरह का हमारे पास स्टार्टर होता है, जो
नॉट ओनली चीज, बेसिकली दो तरह का ही स्टार्टर होता है अगर टेम्परेचर की बात करें, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। एक मेसोफिलिक होता है, दूसरा थर्मोफिलिक होगा। मेसोफिलिक कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर पे यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करेगा, उस तरह के जो स्टार्टर्स होंगे उसको हम लोग मेसोफिलिक बोलेंगे। और जो हाइयर टेम्परेचर पे काम करेगा उसको हम लोग 50 मतलब 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उसको हम लोग थर्मोफिलिक कहेंगे। यहाँ पे देखो दो तरह का बॉटल दिखाया गया है जिसमें तुम्हारा ये थर्मोफिलिक कल्चर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब देखो इसका तुम्हारा डायरेक्शन इसमें लिखा हुआ है, ऐड 1 पैकेट डायरेक्टली इनटू योर मिल्क एट ए टेम्परेचर एंड टाइम कॉल्ड फॉर इन योर रेसिपी, लेट rehydrate for 2 minutes and then stir to dissolve। ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। थर्मोफिलिक है तो थर्मोफिलिक में यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर कह रहा है कि जो तुम्हारा स्पेसिफाइड टेम्परेचर यानी 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब तुम्हारा मिल्क का आ जाए उस टाइम हमारा इसमें कल्चर जो है वो डाल देना है, राइट। अब ये कह रहा है कि 1 पैकेट, ये जो पूरा पैकेट है, विल सेट अप 2 गैलन ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क और अप टू 4 गैलन ऑफ फार्म फ्रेश मिल्क। ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क का 2 गैलन एंड जो फ्रेश मिल्क है उसका 4 गैलन जो होगा वो इसको उसको वो सेट कर सकेगा। इसी तरह तुम्हारा ये मेसोफिलिक का भी इसी तरह है कि भाई एक पैकेट को डायरेक्टली हम लोग मिल्क में कर देंगे, किस टेम्परेचर पे, तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देंगे। और उसका ये इस तरह से मतलब कि ये देख रहे हो कि न्यू इंग्लैंड चीज मेकिंग सप्लाई कंपनी, ये कंपनी का नाम है ना, यहाँ से ये मंगाया गया है जिसपे कि इस तरह का इंस्ट्रक्शन आता है। तो ठीक है, मतलब इस हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो चीज़ स्टार्टर है वो दो तरह का हो गया, तुम्हारा थर्मोफिलिक एंड मेसोफिलिक। एंड दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस यही है कि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा बात, एक बात और भी जान लो कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ जो होगा वो जल्दी सेटल होगा एज कम्पेयर टू मेसोफिलिक। ठीक है, और वो समवट सॉफ्ट एंड सपल भी होगा। ना बताओ दूसरा कह रहा स्टार्टर कल्चर यूज इन मेजर चीजें वैरायटी, ये सम ऑफ द वैरायटीज हैं, बोलो सिमैया। Yes, ma'am. In this slide, you can see that starter culture used in major varieties, that is some major cheese is given. And on the other side, there are bacteria, which is used to make this major cheese is given. So first is a cottage cheese or Camembert cheese. So bacteria used for making cottage and Camembert cheese is Lactococcus lactis, subs lactis, Lactococcus lactis subs ceromoris, and Leucontoc mesenteroids subs ceromoris. And the next cheese, that is Gouda cheese, is used to make bacteria which is used to make Gouda cheese is Lactococcus lactis subs lactis and Leuconostoc mesenteroids subs ceromoris. Next is cheddar cheese. The bacteria is used to make cheddar cheese is Lactococcus lactis subs lactis and Lactococcus lactis subs ceromoris. Next is emmental cheese, and the bacteria which is used to make emmental cheese is Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis subs bulgaricus, and Propionibacterium cermanini. And the next cheese is Parmesan cheese, and the bacteria which is used to make Parmesan cheese is Lactobacillus delbrueckii subs bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subs lactis, Lactococcus lactis subs ceromoris. भाई इसमें जो कुछ स्पीसीज हैं, कुछ वैरायटी के, वो तुम लोग को याद करना पड़ेगा। जो फेमस है कॉटेज, कैमरबर्ड, कुछ जो चीज़ जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उसके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लोगों को याद करना चाहिए। इसको थोड़ा बहुत याद करें ना। मोस्ट तो सारे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस ल्यूकोनोस्टक मिस्टोइड मोस्टली इसमें यही है। एक आधा में तुम्हारा चेंज है, जैसे मेंटल में है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है एंड लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस है। तो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो मेरे ख्याल से वो मतलब हो सकता है। बाकी तो और सब तो तुम लोग क्योंकि मिलता जुलता नाम है इसलिए एक नाम याद कर लोगे तो उसके बाद कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ना क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होना चाहिए चीज स्टार्टर में, बोलो सिमैया। Yeah. There should be some desirable properties of cheese starter so that it can perform more better and we got a final product as we want. So the desirable properties are
It must be vigorous and produce acid at a quick, consistent, and controlled rate. It must produce a clean lactic acid flavor and other aroma. Must not produce any off flavor, taint, pigment, or gas. There must be no appreciable proteolysis or lipolysis. It must contain only lactic acid bacteria of desired type. It must produce acidity smoothly under the condition of manufacture. It should be glossy and in appearance and not dull or chalky. The starter should show no cut particle or lumps, and when poured from the container, it should not show any ropey consistency. These are the desirable properties of cheese starter. चीज स्टार्टर जो चीज स्टार्टर का ही जो है या जो नॉर्मल भी जो स्टार्टर कल्चर का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि भाई वो विगरस होना चाहिए और प्योर होना चाहिए और जो एसिड का प्रोडक्शन है वो क्विक एसिड का प्रोडक्शन करे और कंसिस्टेंट करे, कांस्टेंट रेट पे उसका, ऐसा नहीं कि शुरू में ज़्यादा करे फिर बाद में कम हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और जो जो स्टार्टर कल्चर शुड प्रोड्यूस अ क्लीन लैक्टिक एसिड फ्लेवर एंड अदर जो एरोमा है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। किसी तरह का उसमें ऑफ फ्लेवर, पिगमेंट्स, गैस, टेंट या प्रोटीलिसिस और लिपोलिसिस का जो प्रोसेस है वो उसमें नहीं होना चाहिए। और इसमें ऑब्वियसली जो चीज़ स्टार्टर में मोस्टली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी डिजायरेबल टाइप के होने चाहिए। एसिडिटी जो है वो मतलब कि स्मूथली प्रोड्यूस करना चाहिए कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो कंडीशन है यानी टेम्परेचर या मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने टेम्परेचर, पीएच, उस टेम्परेचर एंड पीएच पे इसको मतलब एसिडिटी स्मूथली एसिडिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। उसका अपीयरेंस ग्लॉसी होना चाहिए, वैसा नहीं कि डल हो या चौकी हो, चौकी मीन्स कि वो ड्राई हो रहा है, ठीक है। और किसी तरह का कर्ड पार्टिकल या लम्प्स वगैरह जब उसको हम लोग किसी कंटेनर में पोर करें तो ऐसा नहीं थक्के थक्के सा वो कुछ निकले, वो बिल्कुल स्मूथ और बिना किसी रोपी कंसिस्टेंसी के होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ चीज स्टार्टर। हाँ, अब ये दो तरह का चीज है, बताओ, आर्टिसनल एंड Yeah, artisanal cheese culture. Artisanal cheese refer to cheese produced by hand using the traditional craftsmanship of skilled cheesemaker. As a result, the cheese are often more complex in taste and variety. So unpasteurized artisanal cheese are a source of pathogen for human. B, isolate lactic acid bacteria from raw milk and from cheese made with raw milk and formulate starter culture for producing an artisanal cheese. Starter culture formulated with lactic acid bacteria derived from unpasteurized cheese can be used for producing artisanal cheese, which is sensory acceptable and microbiologically safe. This cheese is produced primarily by hand in small batches with particular attention paid to the tradition of the cheesemaker's art and thus using little mechanization as possible in the production of the cheese. कह रहा है कि इसको ट्रेडिशनली बनाया जाता है और इसमें क्योंकि मतलब कि जो चीज़ मेकर है उसको ट्रेडिशनली अपने हाथ से ही बनाते हैं, इसीलिए इसका जो कंपोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स एंड उसका जो टेस्ट भी होगा जो थोड़ा सा बहुत जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। और जो अनपास्चुराइज आर्टिफिशियल चीज़ है वो हार्मफुल भी हो सकता है। और हम लोग क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को रॉ मिल्क से उसको आइसोलेट करते हैं एंड फ्रॉम दिस चीज़ मेड विथ रॉ मिल्क, और उसी बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग रॉ मिल्क से चीज़ भी बनाते हैं। एंड इसका आर्टिसनल एंड एडजंक्ट का जो है ना, अभी ये जब तुम करा लोगे उसके बाद हम एक और स्लाइड है उसको भी थोड़ा रन करेंगे क्लियर होने के लिए, इसको पहले खत्म करें। और अदर इज एडजंक्ट, बताओ। Adjunct cheese culture. Adjunct culture are specially selected strains which are intentionally added to accelerate ripening of full fat cheese and for flavor enhancement of low fat cheese. Adjunct cultures increase the intensity and change the balance of cheese flavor, mainly in hard and semi-hard varieties. They are purpose-made culture added to deliberately by cheesemaker over and above the normal culture uses to achieve flavor enhancement and or modification. The principal adjunct used in accelerated ripening of cheese
are mesophilic lactobacilli and thermophilic lactobacilli in lactobacilli. Inoculation with mesophilic lactobacilli adjuncts enhance flavor and accelerate proteolysis at the level of small peptides and amino acid. मतलब देखो एडजंक्ट जो चीज पहले वाला जो था ना वो एक ट्रेडिशनल, उसमें किसी तरह का भाई तुम क्या उसमें किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हो ये नहीं पता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली बनता है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम लोग घर में दही बनाते हैं और बाहर इंडस्ट्रियल लेवल पे योगर्ट बनता है। ठीक है, दही में ठीक है हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि भाई लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लेकिन उस दही में और भी क्या क्या फ्लोरा पाए जाते हैं ये हम लोग घर में नहीं जान सकते हैं। और इसीलिए जो होममेड दही है उसका कंपोजिशन है वो समवॉट कॉम्प्लेक्स है, राइट। और अगर हमने उसको अच्छे से नहीं उसको हैंडल किया या उसको मतलब कंट्रोल कंडीशन में नहीं रखा तो दही से भी कई तरह के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये जो तुम्हारा आर्टिसनल जो चीज है वो भी एक चीज बनाने वाला जो इंसान होता है जिसको कि अच्छी तरह से चीज बनाने आता है वही बनाता है, और उसमें वो किसी तरह का मतलब ऐसा स्पेसिफाइड चीज कल्चर को यूज नहीं करता, सिंपली वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज करता है एंड उससे वो चीज बना देता है। और अगर उसको मतलब कि ढंग से नहीं पास्चराइज किया तो ये जो जो आर्टिसनल चीज है वो पैथोजेनिक भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए, उसमें कई तरह के मतलब कि डिजीज वगैरह भी आ सकते हैं। बट ये जो एडजेंट चीज कल्चर है इसको सेलेक्टिवली जो अच्छे फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया और अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सिलेक्ट करके सिलेक्टेड स्ट्रेन को इनोकुलेट किया जाता है मिल्क में। और मेन इसमें क्या है कि इसमें जैसे जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया कि घर में कर्ड बना रहे हो और बाहर का योगर्ट खा रहे हो, तो योगर्ट जो होता है उसमें कई तरह की चीजें जो है वो ऐड की जाती है। उसमें हमारा कल्चर जो होता है वो नोन होता है, उसमें प्रोटीन फैट इन सब का कंपोजिशन जो होता है वो बैलेंस करके उसमें डाला जाता है। उसमें फ्लेवर के लिए उसमें लुकोनोस्टा का इनोकुलेशन किया जाता है। तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी inoculated in yogurt to enhance its flavor, and the composition of starter is known in them only. Likewise adjunct चीज कल्चर में भी हमारा जो भी है स्ट्रेन जो है वो सिलेक्टेड होगा, वो मतलब उसमें एक पार्टिकुलर टाइम में हमें एसिडिटी कराना है, उसके बाद एक पार्टिकुलर टाइम में हमें फ्लेवर इन्हेंसमेंट के लिए सम अदर जो बैक्टीरिया है उसको इनोकुलेट करना है। तो ये जो मतलब कि एडजंक्ट चीज स्टार्टर है ये इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो हमारा उसमें जो नॉर्मल नेचुरल माइक्रोफ्लोरा होता है उसके अलावा हम उसमें कुछ बाहर से, जैसे कि इसमें कह रहा है कि मेजोफिलिक लैक्टोबैसिलाई एंड थर्मोफिलिक लैक्टोबैसिलाई इनोकुलेशन विद मेजोफिलिक, मतलब कि इसमें अगर हम मेजोफिलिक लैक्टोबैसिलाई को एडजंक्ट करते हैं मतलब उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं एडजंक्ट करते हैं तो उससे हमारा जो फ्लेवर है वो इनहेंस होता है एंड जो प्रोटीलिसिस का रेट है वो इंक्रीज करता है। मतलब सीधी बात है कि अगर आर्टिसनल तुमने बना दिया, अब आर्टिसनल में हमें इम्प्रूव करना है क्योंकि आर्टिसनल है उसमें बस ठीक है उसको एक नेचुरल प्रोसेस में हमने उसको बनने दिया, चीज बनने दिया, उसको हमने रिप्लेस कर दिया कि जो आर्टिसनल में जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है उसके बजाय हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से कुछ मेजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक सिलेक्टेड स्ट्रेन उसको हम लोग एडजंक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो प्रोटीलिसिस है उसका भी रेट बढ़ जाता है। एंड ऑब्वियसली जब प्रोटीलिसिस का रेट बढ़ता है तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स बनते हैं जो कि फर्दर उसमें इनहेंसमेंट ऑफ फ्लेवर और कुछ उसमें फ्लेवर एंड उसका जो एरोमा वगैरह ये इंक्रीज कराता है। So, बोलो माइक्रोफ्लोरा ऑफ चीज। So the next slide is microflora of cheese. The microbes important for dairy products manufacturing can be subdivided into two groups, a primary and secondary microflora. The products undergoing fermentation by only primary microflora are called unripened, and those processed by both primary and secondary microflora are called ripened. Microbes can not only be harmful to society, but also can be manipulated in a variety of ways for the benefit of society. Particularly in the preservation and production of food, microbes have proven to be useful and essential. कह रहा है कि इसमें जो दो तरह के इसमें माइक्रोफ्लोरा होंगे, तुम्हारा प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा एंड सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा। इतना साल बाद सब एंटर करेगा ना और बीच में डिस्टर्ब करके रख देगा। इतने दिन
इतने टाइम से इसको होश नहीं आ रहा था कि अभी क्लास चल रहा है। तो दो तरह के होंगे, प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा एंड जो प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा है उसमें तुमको दिखाया जाएगा प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा में कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो जो ओनली जब प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा से तुम्हें चीज का प्रोडक्शन हो तो उसको हम लोग अनराइपेंड चीज कहेंगे। ऑब्वियसली चीज जो हम लोग खाते हैं वो राइपेंड चीज खाते हैं, बिल्कुल राइपनिंग उसकी हो जाती है अच्छे से, उसमें फ्लेवर वगैरह डेवलप कर जाता है तब खाते हैं। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है चीज का वो दो भागों में हम उसको बांट सकते हैं, मतलब कि एक प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा एंड दूसरा जो होगा वो सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा। तो सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा के द्वारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट कॉल्ड एज द राइपेंड चीज। ये तो एक जनरल सा बात बोला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर नॉट ओनली हार्मफुल टू द सोसाइटी बट दे आर आल्सो यूजफुल, एंड वही हम लोग यूजफुल पार्ट जो है उसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बताओ इसमें, बताओ आगे नेक्स्ट स्लाइड। Yeah. The microflora, as we see in the previous slide, microflora are divided into primary and secondary microflora. So primary microflora of cheese are fermentative lactic acid bacteria which cause the milk to curdle. During dairy product production, milk is first pasteurized to kill bacteria that cause unwanted spoilage of the milk and of the downstream milk product. A primary microflora consists of certain kind of Lactococcus, Lactobacillus, and Streptococcus that are intentionally added to pasteurized milk and grow at 30 degrees centigrade or 37 degrees centigrade. Temperature depend on the bacteria that we added in the milk. बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर मेजोफिलिक होगा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैक्सिमम रखोगे। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस अगर ऐड कर रहे हो तो हायर टेम्परेचर पे तुम्हें जाना होगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह का बैक्टीरिया तुमने चूज किया। नेक्स्ट बोलो। Yeah, the next is secondary microflora of cheese. Secondary microflora includes several different types of bacteria, that is Leucostoc, Lactobacillus, and Propionibacterium, yeast, and molds. They are only used for some type of surface ripened and mold ripened cheese. Secondary microflora ripen the cheese and will determine the final texture and aroma of each type of cheese. For hard ripened cheese such as cheddar cheese, curd are further compressed and the bacteria particular for the cheese is added. The cheddar is wrapped in wax or plastic to prevent contamination and then incubated to allow the bacteria to do its work. For soft ripened cheese such as Camembert and Limburger, a microbes, usually mold, is added to the surface of the cheese that produce a protein digesting enzymes. ठीक है, जो प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा होगा चीज में हम जानते हैं कि जो मतलब कि एक एडिशनल फ्लेवर होता है, एंड किस किस तरह का चीज के हजारों वैरायटी होते हैं और हर चीज का एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक अलग अलग फीचर होता है। बेसिकली जो हम लोग इंडिया में जो चीज देख रहे हैं, इंडिया में जो है हमारे पास मोजरेला चीज है, तो मोजरेला चीज का तुम देखते हो कि टेक्सचर जो होगा वो मतलब बिल्कुल जिसको कि पिज्जा में यूज करते हैं वो बिल्कुल ऐसे चीवी टाइप का होता है जिसको कि हम लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह कोई किसी किसी चीज में देखोगे कि होल बना हुआ रहता है ना, तो उस मतलब कि जिसको कि उस चीज में अलग तरह का माइक्रोफ्लोरा ऐड किया जाता है। इसी तरह तुम देखते हो कि और भी तुम्हारा जो चीजें गोडा चीज वगैरह ये सब भी इंडिया में सब मतलब कि कुछ लिमिटेड इसका यूज है, बहुत लोग इसको नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जो प्राइमरी माइक्रोफ्लोरा होगा वो मोर और लेस सब में सेम ही होगा, क्योंकि भाई चीज है, पहले मिल्क को हमें कडल करना है एंड कडल करके फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करना है। तो अब किस तरह का चीज बनेगा, किस तरह का हमें चीज चाहिए, उस टाइप पे उसका सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा जो होगा वो डिपेंड करेगा। तो इसमें कह रहा है कि जो सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा है वो डिफरेंट हो सकता है, दैट में बी ल्यूकोनोस्टक, दैट में बी प्रोपाइनोबैक्टर, दैट में बी लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और ये जो मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ओनली सरफेस टाइप एंड सरफेस राइपन एंड मोल्ड राइपन चीज के लिए इनको बेसिकली यूज किया जाता है। अब यही जो सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा है वही तुम्हारा डिटरमाइन करेगा कि फाइनल टेक्सचर एंड जो हमारा चीज का जो एरोमा होगा वो क्या होगा। जैसे कह रहा है कि फॉर हार्ड राइपन चीज सच एज cheddar cheese, curd are further compressed and the bacteria particular for the cheese is added
The cheddar is wrapped in wax or plastic to prevent contamination and inoculated to allow the bacteria to do its. मतलब एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया हर अलग अलग जो चीज होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरह तुम्हारा कैमम्बर्ट एंड जो लिम्बर्गर है उसमें हमारा मोस्टली जो होता है मोल्ड को यूज किया जाता है। मोल्ड उसके सरफेस पे किया जाता है जिससे कि ये मैंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का फॉर्मेशन करता है एंड वो फिर फर्दर प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके और उसमें एरोमा को ऐड करता है। सो किस तरह का चीज, ये तो तुम लोग चीज का जो क्लास होगा, चीज का जो स्पेशल तुम लोग का क्लास होगा उसमें कई तरह की चीज का डिस्कशन होता होगा। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बताया जाता होगा कि हमारा जो वेरियस टाइप ऑफ चीज है उसमें किस तरह का सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा यूज होता है, कौन कौन सा सेकेंडरी। मुझे ये याद है कि ये जो प्रोपाइनोबैक्टर है ये तुम्हारा जो ब्लू आइड चीज है उसमें इसका यूज होता है, क्योंकि ये प्रोपाइनोबैक्टीरिया जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि तुम्हारा चीज में आई का फॉर्मेशन करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और चीज से मतलब कि छेद करके निकलता है जिसके कारण की आई का फॉर्मेशन होता है। सो ये सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो हर चीज में अलग अलग होता है, बट प्राइमरी जो माइक्रोफ्लोरा है वो मोर और लेस समान होगा। चलो पढ़ो नेक्स्ट। बेनिफिट्स क्या क्या है स्टार्टर कल्चर में चीज मेकिंग का? The benefits of starter culture in cheese making. Okay. Starter culture is used in the making of the vast majority of cheese. Goat turn the milk natural lactose sugar into lactic acid. This is beneficial for cheese making for several reasons. First, acidifying the milk forces it to curdle and split, helping to form the curd, which are the essential ingredient in cheese. And secondly, creating lactic acid uses up the lactose sugar and milk nutrient resources, and the milk become more acid. These two factors make it harder for bad pathogenic and spoilage bacteria to grow. They don't like acid, and to grow, they also need the sugar in milk. Preventing the growth of bad bacteria, therefore, naturally help preserve the cheese, and is one of the reasons why cheese keep longer than milk. Thirdly, the process starts to create flavor, which will go on to influence the final texture, smell, and taste of the cheese. In order for all of this to happen, bacteria are essential. The bacteria are more often than not added to the milk right at the beginning of the cheese making process, hence the term starter culture and primary lactic acid bacteria. बस सीधी सी बात है कि क्या है स्टार्टर कल्चर का, चीज में क्या बेनिफिट है भाई। सीधी सी बात है कि हम पहला बेनिफिट तो यही है कि जो मिल्क में जो स्टार्टर कल्चर हम लोग डालते हैं वो उसको एसिडिफाई करता है। एसिडिफाई करता है तो वो मिल्क जो है वो मतलब कि समवट कडल होता है, ठीक है। अब कडल होने के कारण बहुत सारे, क्योंकि मिल्क का जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है एंड बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस एसिड पे नहीं ग्रो कर पाता है। तो यही वजह है कि जो अब तुम्हारा जो मिल्क है जिसमें कि तुमने चीज का स्टार्टर कल्चर डाला जो कि चीज बनने के कगार पे है वो ज्यादा सेफ है देन एज कम्पेयर टू नॉर्मल मिल्क। और यही वजह है कि जो मिल्क है उसको हम लोग जल्दी, मतलब मिल्क इमीडिएटली खराब हो जाता है बट चीज को हम लोग कई दिनों तक रख सकते हैं। उसको हम लोग लगभग एक हफ्ता तक चीज को हम लोग आराम से उसको रख सकते हैं। और दूसरा बात कि जो स्टार्टर कल्चर जो हम लोग डालते हैं जो कि इनिशिएशन कराता है, एसिडिफिकेशन का जो प्रोसेस कराता है, उसके बाद ही उसमें सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा जो है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि जब तक वो स्लाइट एसिडिक कंडीशन नहीं लाएगा तब तक उसमें सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा उसमें ग्रो नहीं करेंगे, जो कि चीज के फ्लेवर इन्हेंसमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज है उसमें ऐसा नहीं कि मतलब कि हम कभी ऑफन यूज कर सकते हैं स्टार्टर को, बल्कि उसमें हमें स्टार्टर कल्चर एक बेस्ट चीज बनाने के लिए हमें स्टार्टर कल्चर उसमें ऐड करना ही होता है, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि जो कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि अगर शुगर तुम्हारा मिल्क में ज्यादा रहा तो उसमें जो शुगर को यूटिलाइज करने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब जो स्टार्टर है वो शुगर को ही चेंज कर देता है, शुगर यानी कि जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। तो इस वजह से जो चीज है वो उसकी कीपिंग क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही हमारा बेनिफिट है कि क्या बेनिफिट है हमारा स्टार्टर कल्चर के यूज का, हम चीज में क्यों उसको ऐड करते हैं स्टार्टर कल्चर का, ठीक है। ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत सही है, मतलब कि तुम प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से किए इसमें, और मोस्टली इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आ गया है। तो थैंक यू मैम।
हाँ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा तुम्हारा, बनाया भी तुमने अच्छा है, सब बेटर रहा, तुमने बोला भी बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा है तुम्हारा प्रेजेंटेशन, राइट। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और अगर है, अगर तो उसको भी यहाँ डिस्कस करके खत्म करते हैं। सबको समझ में आया भाई, किसी को प्रॉब्लम है? आ गया मैम समझ में। इतना सिंपल स्लाइड बनाया था, देखो स्लाइड सिंपल ही बनाना चाहिए, ऐसा बहुत नहीं कि एकदम साइंटिस्ट बनने का जरूरत पड़ जाए उस स्लाइड को समझने के लिए, ठीक है ना। स्लाइड सिंपल ही होना चाहिए कि हर किसी को समझ में आए, ठीक है। किशोर तुम्हारे तुम्हारे उसका, हाँ बोलो। कल 11 बजे से लेंगी मैम मिड टर्म। मेरा डेट कल दिए हो तुम लोग, 17 तारीख का डेट तुम लोग दिए हो। 17 11 है मैम। 11 है कि 17 है प्रशांत? मैम 11 11 है। यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो इसी टाइम ले लेंगे एग्जाम, अभी हम क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है मैम। ठीक है ना। हमको लगा 17 तारीख को, वही हमको लगा कि एक हफ्ता। ठीक है तो तैयारी करो, ये तुम्हारा ये चीज़ का है, मेरे पास कुछ स्लाइड था उसको एक बार देख हो जाते हैं, अगर कुछ एडिशनल कुछ है तो। कुछ नहीं है इसमें, चीज़ जो होता है वो गोट सिल्क वगैरह, मतलब अदर मिल्क से भी बन सकता है, गोट सिल्क मिल्क को भी हम लोग कर सकते हैं, रॉ एंड पास्चराइज मिल्क दोनों यूज करते हैं हम लोग, और नीड मोर रिनेट प्राइस फॉर होमोजेनाइज्ड देन द रॉ मिल्क। हाँ ऑब्वियसली जो ये पहले भी जो तुम्हारा पैकेट जो आया है उसमें लिखा हुआ है कि जो जिसमें तुमने अभी जस्ट जो सिमैया का जो ये था उसमें तुम लोग क्वेश्चन पूछे भी नहीं कि क्यों मैडम पास्चराइज मिल्क में क्यों हम लोग डबल डोज यूज कर रहे हैं स्टार्टर कल्चर का, और अनपास्चराइज में क्यों हम लोग सिंगल डोज यूज कर रहे हैं। देखे थे उसके पैकेट पे जो लिखा था, भाई सीधी बात है, जो पास्चराइज मिल्क है उसमें तुम्हारा जो नेचुरल बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा है वो किल हो जाएंगे, जो अनपास्चराइज मिल्क है तो उसमें मतलब कि उसमें रहेंगे नेचुरल माइक्रोफ्लोरा जो होंगे वो रहेंगे, ठीक है ना। तो अनपास्चराइज मिल्क में तुमको कम स्टार्टर कल्चर का जरूरत पड़ेगा, और तो जो पास्चराइज है उसमें तुम्हारा, जो अनपास्चराइज है उसमें कम, अनपास्चराइज में तुम्हें ज्यादा स्टार्टर कल्चर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा इसमें एक चीज डालते कैल्शियम क्लोराइड, ये शायद आता है ना क्वेश्चन में, कि हम लोग स्मूदर टेक्सचर बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। हम दोनों स्लाइड तुम लोग को भेज देंगे, सिमैया का भी भेज देंगे, ये भी भेज देंगे, ठीक है ना, दोनों एक बार तुम लोग देख लेना। और जो एंजाइम यूज होता है वेरिनेट एंजाइम होता है, इस तो शायद तुम लोग पढ़े भी होगे, चीज वाले बहुत सारे क्लास में तुम लोग पढ़ रही होगे। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्टपीटर ये भी इसमें डाला जाता है, समटाइम जो होता है लाइसोजाइम भी इसमें ऐड किया जाता है, और जो कि तुम्हारा क्लोस्ट्राइडिया ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करता है। ये कुछ एक आधा पॉइंट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जो है ना द वाइटल ऑफ चीज मेकिंग, इसको डेविस ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने कहा था हार्ट ऑफ चीज स्टार्टर कल्चर को? डेविस ने। ये मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं, ठीक है ना, उसको देख लेना, राइट। मेजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक अच्छी तरह से बता दिया हुआ है, ये देखो इसमें बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आई क्रिएशन के लिए होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है, ये है तुम्हारा चीज का, ये तुम लोग मेरे ख्याल से चीज वगैरह में ये सारा प्रोसेस है, मैचुरेशन राइपनिंग, ठीक है ना। बोलोगे तो इसका एक क्लास हम ले लेंगे। देखो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ चीज स्टार्टर, इसको कई तरह से किया गया, नॉन लैक्टिक के आधार पे, लैक्टिक के आधार पे, फिर तुम्हारा मेजोफिलिक टेम्परेचर के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे, है ना, क्या क्या एक्टिविटी करता है। ये हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट में, ये वाला एक बार करा देंगे तुम लोग को, ठीक है। क्या क्या इसमें बायोकेमिकल चेंजेस ये भी पढ़ना है, या किसी का है ये टॉपिक? तुम लोग बोलते ही नहीं हो, बोलो किसी का है ये टॉपिक बायोकेमिकल चेंजेस वगैरह जो करना है? नो मैम। चलो आज सिमैया का बहुत ही अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, क्योंकि तुम लोग का कल एग्जाम है, तो ठीक है तैयारी करो, और कल इसी टाइम तुम लोग का एग्जाम होगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगा ना ये चीज़ हम इसको फिर एक बार
अपने स्लाइड से कुछ एडिशनल बातें होंगी वो भी हम करा देंगे। स्लाइड तुम लोग को सिमैया का भी चला जाएगा, मेरा भी चला जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास आर्टिसनल का भी है, जो भी मेरे पास होगा तुम लोग का जो असाइनमेंट आता है दोनों मिला के हम तुम लोग को पीपीटी भेज दिया करेंगे, ताकि कहीं से कुछ छूटे नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो होगा वो अपना असाइनमेंट के लिए तैयार रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास जिसका रहेगा, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलो तैयारी करो, जो चैप्टर ये हो उसका अच्छे से तैयारी करो। इसी टाइम एग्जाम रहेगा तुम लोग का, चोरी चकारी नहीं करोगे, हम पूरा कैमरा ऑन रखेंगे, याद रखना, मेरे सामने एग्जाम देना पड़ेगा, उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। चलो तुम लोग सब जाओ तैयारी करो।